welcome to the channel, guys. So today we are going to do Science Chapter 9, Chapter 11, The Human Eye and the Colorful World, and Physics Chapter 2, The Human Eye and the Colorful World. Oh, I'm so sorry. Okay. In this chapter, we are going to see about our eye and the structure of eye and about the colorful world. Why do we see the world colorful? What is the reason behind it? What is the phenomenon behind it? Okay, this is the structure of our eye. Let me make it bigger. Okay. The outermost part, cornea, is called cornea, which we can touch. We should not touch, but if you have touched any time, the one which you touch is the part of cornea. And this eyeball is nearly 2.3 centimeter of diameter. Okay. This is iris, which has a point-like structure called pupil, which allow light to enter. This is a lens. Okay. And this is a aqueous body, and this is a vitreous body. Here it is written vitreous body. Then this is a ciliary muscles, which plays an important role. Okay, this is our retina, the screen. This is a blind spot, and from here the optic nerve, which takes the image to the brain. Now, if the image is formed on the screen, then the image will be inverted, right? So, do we see the objects inverted? No. We also don't know that in retina it is formed vis-a-vis. Why, right? And whenever it goes from the color is not visible, I guess. Whenever it goes from the optic nerve in our brain, it processes and we are able to see the image like this. Just think how the world we will look if our brain is not able to rotate the image. We will be able to see everything inverted, and that will be a literally a difficult task, right? And in that, seeing what time is it won't be so hard, right? तो घड़ी बनने में भी ध्यान रखते ना, ऐसे घड़ी भी उल्टी बनाते, राइट? Okay, now these are some of the things. First I told, that is cornea, this whole part. Okay, cornea, it is a thin membrane covering the temperate bulbs. Oh, there is some spelling mistake, sorry. Covering the transparent bulge on the surface of the eyeball and through which light enters the eye. इधर से हमारी आई जो लाइट है ना, वो सबसे पहले एंटर होती है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो हमारे आई में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है ना, वो कॉर्निया पे ही हो जाता है. फिर आता है आइरिस. ठीक है, तो इधर जो आइरिस है वो ब्लू कलर का जो पार्ट है ना, दैट इज आइरिस. इन दिस आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, और फिर ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, राइट? लेकिन जो ये अंदर का डॉट होता है ना, वो सबको ब्लैक ही होता है. दैट इज प्यूपिल. Why is it so? Because black color absorbs all the lights. They are even same over here. Pupil absorbs everything, and therefore it looks black color. Sorry, why is it moving? Iris is a dark muscular assembly which dark muscular. Just a second. Assembly which lies behind the cornea and controls the size of pupil. It controls the size of pupil. बड़ा होना, छोटा होना. प्यूपिल है ना, जैसे अगर लाइट ज़्यादा होती है तो वो छोटी हो जाती है, ऐसा उस प्रमाण वो भी चेंज होता है. There are some spelling mistakes today, just please ignore it, I'm so sorry. Now pupil regulates the amount of light entering the eyes.
प्यूपिल में जब है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है तो वो बहुत छोटी हो जाती है। और जब ऐसे हम आपने देखा होगा कि जब आप ऐसे धूप में से घर पे आते हो तो आप बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, ठीक है, और आप घर के अंदर आए तो आपको थोड़ी देर है ना, इफ द घर पे ना अगर सब जगह कर्टेन्स लगे हुए हैं, दरवाज़ा बंद है, तो कैसा पूरा अंधारा छाया होता है, राइट, और आपकी आंख ऐसे थोड़ी देर कुछ देख नहीं पाती, राइट, तो उसका भी कारण होता है। नाउ क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स lying at lying at various distances on the retina। तो भी लेंस क्या करता है, लेंस जो होता है ना वो रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है जिसके कारण वो रेटिना के ऊपर वो इमेज बने, ठीक है। अभी रेटिना क्या है, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, वो स्क्रीन है जिसके ऊपर बनता है हमारी इमेज। उसमें दो चीज़ होती है, रॉड्स एंड कॉन्स। उसमें एक है ना ध्यान रखता है कलर के बारे में, और दी अनदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है उसका काम होता है, ठीक है। फिर आता है एक्वस ह्यूमर, वो लेंस और हमारे कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है, और वो भी इट्स लाइक लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। फिर आते हैं सिलियरी मसल्स जो कर्वेचर को चेंज करते हैं। वाई डू वी नीड दिस सिलियरी मसल्स, लेट्स डिस्कस, ठीक है। ये हमारा आई है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉर्निया, ये हमारा लेंस है, इधर हमारे सिलियरी मसल्स है, ठीक है। तो अभी सिलियरी मसल्स नहीं होगा, हम ऑब्जेक्ट इधर होता है तो भी देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट इधर होता है तो भी देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों, जबकि इमेज तो इधर एक ही जगह फॉर्म होने वाली है, राइट। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं ना वो इसे लाइक खींचते हैं, फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस, जिसके कारण पहले इसको फोकस कर पाता है, फिर अगर हमको दूर का देखना होता है तो वापिस वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, जिसके कारण हम दूर का देख पाते हैं, ठीक है। वेल फिर आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, जैसा मैंने समझा इट इज सेम द अबव। Actually, I have used the another method and therefore there are some of the spelling mistake. Please ignore it. It is the ability of the eye lens to focus nearby as well as distant objects by adjusting the focal length. मैंने जैसे कि बोला दूर का और नज़दीक का, मैंने यही पावर ऑफ अकोमोडेशन ही आपको पहले वो समझाया था, ठीक है। हमको ये हम नज़दीक का देखने के लिए हमारी आई लेंस है ना वो थिक बन जाती है, इधर थिक आएगा, इट बिकम्स थिक, ठीक है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का देखने के लिए वो थिन हो जाती है, ठीक है। नज़दीक का देखने के लिए फॉर एग्जांपल ऐसी होती है और दूर का देखने के लिए थोड़ी थिन हो जाती है, ठीक है। अभी हमारा नियर पॉइंट, अब सबसे नियर आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पेपर या बुक है तो आप उसे पकड़ो, ऐसे बुक लेके ही बैठना, जब पढ़ने बैठो नोट्स लिखते जाना, तो उसे ऐसे नज़दीक ले जाओ, 25 सेंटीमीटर के अंदर करो, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, राइट। तो हमारा नियर पॉइंट है, हम सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर पर देख पाते हैं। अभी दूर तक देखो, आसपास अगर कहीं विंडो हो तो बाहर देखो, या घर पे ही देखो, या कहीं पे भी हो, देखो दूर तक आपको कहाँ तक दिख रहा है, टिल द एंड, आपको जहाँ इट इज वी आर एबल टू सी टिल इन्फिनिटी। तो हमारा फार पॉइंट क्या हुआ, इन्फिनिटी। तो इधर आपको दिया गया है, एक डेफिनेशन दिया है पावर ऑफ अकोमोडेशन का, ठीक है। इट इज अ मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ द लाइट आई फॉर फोकसिंग द नियर एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, इट इज फॉर डायोप्टर, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएशन है, आई लेंस इससे इतना ही बैंड कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकता है, और ये क्या वो क्या है, 4 डायोप्टर है, ठीक है। नाउ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट ने आपने काफी बार सुना होगा, उसे हम बोलते हैं मोतिया, राइट। अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट बोलते हैं, राइट, लेकिन हम लोग मतलब इधर हम
मोतिया बोलते हैं। तो कैटरेक्ट इज लाइक आपकी जो आई होती है ना, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आई, हम कैट की आई ही ले लेते हैं, ठीक है। कैट की आई इज ऑलरेडी हेजी, तो उसके ऊपर है ना थोड़ा थोड़ा हेज आ जाती है, जिसके कारण आपको देखने में प्रॉब्लम आती है, या तो टोटली ओपेक हो गया, तो ये एक सर्जरी से हो जाता है ठीक, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। टिल कि आप बहुत सीवियर ना हो तब तक वो ठीक हो ही जाता है। और ओल्ड एज में मोस्टली 99.99% सबको आता ही है, ठीक है। और ये क्या लीड, इट विल लीड टू डिक्रीज और लूज ऑफ विजन। ओके, सर्जरी से करेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ रीजन वाई शुड बी हैव टू आईज नॉट वन आई। ये देखो एक आई आपको दी है, इससे आपको कितना दिखेगा 150 डिग्री, लेकिन अगर दो आई होगी ना तो हमको दिखेगा 180 डिग्री। तो वाइड व्यू के लिए, क्या वाइड व्यू के लिए हमको चाहिए दो आईज, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आप में से काफी लोग चश्मे पहनते होंगे, राइट। तो क्या प्रॉब्लम होगा, कौन सी चीजें होगी, वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पता होगा पावर, काफी लोगों को पता भी होगा कि उनको कौन सी डिफेक्ट है, राइट। लेकिन उसके कॉजेस क्या है, उसे ठीक कैसे किया जाता है, आप कौन से टाइप के लेंस पहनते हो, वो सब आज हम जानेंगे, ठीक है। Now, first is myopia. It is also known as nearsightedness. नियर का मतलब क्या, आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हो, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते। तो होता क्या है इसमें कि जो इमेज होती है ना, वो रेटिना के आगे बन जाती है। कैसे, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लेंस। अगर आपको एग्जाम में पूछा है तो आपको पूरी की पूरी आई, जो आई का पूरा डायग्राम तो नहीं, लेकिन इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है। ओके, इधर बहुत ज़्यादा खिंचड़ा ना हो, इसलिए इधर हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारी है रेटिना। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर फॉर्म होना चाहिए उसका जगह इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, रेटिना के पहले, ठीक है। नाउ लेट अस सी ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। लेट मी अगेन डू दैट डायग्राम सो आपको इजीली पता चल जाए। ये आपकी स्क्रीन है, तो इधर बन रहा है द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब जो कर्व, इसका जो आई लेंस का कर्वेचर है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इधर होगा और इधर हमारी स्क्रीन है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमने उसे थिक कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या होगा, वो ज़्यादा ऐसे होगा ना, तो पहले ही मीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। या क्या हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल है ना वो बड़ी हो गई हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, लेट्स सी। अभी पहले ही नॉर्मल में क्या होता है, इधर होता है रेटिना, लेकिन आपका जो आई बॉल है वो बड़ा हो गया है, तो आगे आ गया, राइट। तो अभी हम इसे कैसे करेक्ट कर पाएंगे, लेट अस सी। तो इसे हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। व्हाई टू यूज कॉनकेव लेंस, देखो ऐसे मैंने बोल दिया कॉनकेव लेंस, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, समझाना ही अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज योर लेंस। अभी क्या, पहले क्या था रीज़न, एक्सेसिव कर्वेचर, तो हम अभी उसे पकड़ के चलते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा ही बेंड हो रहा है, ज़्यादा ही बेंड हो रहा है, ठीक है, इधर ही मिल जा रहा है उसके पहले ही। तो हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव उसके उल्टा वाला लगा देंगे, उससे उल्टा वाला, तो वो एग्जैक्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। इट विल कंबाइन एट एग्जैक्ट पोजीशन। तो हम कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कन्वर्ज हो गया था, इसलिए वी आर यूजिंग द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और अप्रोप्रिएट पावर। अभी आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, दूर का अच्छी तरह से दिखाई देता है
लेकिन नज़दीक का इतना क्लियरली नहीं दिखता। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जो ये होता है ना हमारा आई बॉल, उसके पीछे बनता है। क्या वो उसके पीछे बनता है? फॉर एग्जाम्पल द रेज कम्स लाइक दिस, सॉरी, ऐसे आते हैं रेज। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, इधर से आ रहे हैं तो रेज बाहर चले जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? इट्स उल्टा। इसका उल्टा हो जाएगा ना कि फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकल लेंथ क्या हुआ? द लार्ज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। या तो हमारी आई जो हो वो छोटी हो गई है। इधर चलो, इधर नॉर्मल ही होता है, इधर पॉइंट है, तो हमारा जो आई बॉल है वो छोटा हो गया। पॉसिबल है? यस। हाउ कैन वी करेक्ट दिस? तो मैंने क्या बोला कि आपका जो ये जो है वो उसका फोकल लेंथ लार्ज हो गया है, तो हम क्यों ना वापस सेम करें, क्योंकि वो कम डाइवर्ज हो रही है, कम कन्वर्ज हो रही है, तो हम और कन्वर्जन वाला लगा देते हैं, तो वो आ जाएगी ना इधर। सी, इधर बन रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने और एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दी तो थोड़ा आगे आ जाएगा। देयरफॉर वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ और पावर। अभी प्रेस बायोपिया क्या है? मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों। तो ये कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या है? तो धीरे धीरे हमारे ना सिलियरी मसल्स वीक होने लगते हैं, जिसके कारण उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है लेंस की। वो इतना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता, इसलिए हम दूर का और नज़दीक का दोनों अच्छी तरह से नहीं देख पाते। और एक चीज़ है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना वो बड़े लोगों में ज़्यादा होता है, मायोपिया छोटे लोगों में होता है। इट इज़ अ वेरी रेयर कि छोटे में हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, अभी अभी आपका जो भी पावर होगा वो नेगेटिव में होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, तो इसके जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव में होती है, राइट। हाइपरमेट्रोपिया, और ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको मायोपिया होगा तो बड़े होके आपको हाइपरमेट्रोपिया तो होगा और प्रेस बायोपिया दोनों भी होगा। तो भी हम करेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो बाईफोकल लेंथ होती है, वी विल बी यूजिंग बाईफोकल लेंथ। जिसका अपर का पार्ट होता है ना वो कॉनकेव लेंस का होगा और नीचे का कॉन्वेक्स। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कोई जो बड़े लोग होते हैं ना वो दो चश्मे पहनते हैं, राइट। या ऐसा भी देखा होगा कि उनके जो चश्मे हैं ना वो ऐसे फिर ऐसे थोड़ा होता है, राइट। तो वो उसके कारण होता है। नाउ लेट अस लुक प्रिज्म में, प्रिज्म के बारे में, क्योंकि हमको कलरफुल वर्ड है तो रेनबो तो आएगा, राइट, फुल ऑफ कलर्स। लेट मी शो यू डायग्राम से मैं समझाती हूँ। ठीक है, प्रिज्म है हमारी, ये हमारी प्रिज्म है। ठीक है, अभी इधर से आया एक रे, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अच्छी तरह से दिखे आपको। ये प्रिज्म है, इधर से रे आया तो हम इधर 90 डिग्री पे उसका नॉर्मल बना देते हैं। इधर नॉर्मल पे टच हो रहा है, हाँ। अभी वो रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको पता होगा कि अगर वो रेयर से डेंसर में जाना चाह रहा है तो वो इट विल मूव टूवर्ड्स दी नॉर्मल, इट विल मूव टूवर्ड्स दी, थोड़ा नॉर्मल भी मैंने टेढ़ा किया है, इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो अभी वो ऐसे मूव होगा। नाउ अगेन इधर हमारा आएगा, now it is moving from denser to rarer, so it will move away from normal, तो ऐसे आएगा। अभी दिस इज, इसमें एक और चीज़ इसे हम बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। तो ये जो बीच में एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं डी। डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इधर बनता है एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, ओके, दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अभी क्या होता है आगे मैं बताती हूँ, आगे लिखा हुआ है।
तो वाइट लाइट, उसमें जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, राइट। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है, वेवलेंथ होती है, रिफ्रैक्टिव डिफरेंट होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होती है और डेविएशन डिफरेंट होता है, राइट। तो जिसके कारण है ना, मैंने जो इधर बनाया था मैं सिर्फ इस बाजू का बना रही हूँ, तो इधर सब लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेविएट होते हैं। वी नो कौन सा कलर होता है, वेब ग्योर, ओके, विब ग्योर, जिसका मतलब है कि रेड सबसे कम डेविएट, रेड कब से सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा, इसलिए वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बारे में आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। अभी रिकम्बिनेशन कराया ऑफ स्पेक्ट्रम, तो क्या होता है, उन्होंने क्या किया, ये जो था एक आइडेंटिकल प्रिज्म लिया, और जो इधर से ये रेज निकल रहे थे ना, ठीक है, ऐसे जो निकल रहे थे वो इधर आके इधर आके वापिस हो गए साथ में लाइक दिस, और इधर से बन गई उन लोगों की एक रे, और इधर वापिस वाइट लाइट आ गई। नहीं समझ में, थोड़ा मैसी है, मैं वापिस बना देती हूँ। दिस इज फर्स्ट प्रिज्म, उसकी आइडेंटिकल एक सेम प्रिज्म ली, इधर हमने एक निकाला, इधर चला जाएगा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ यूज़ करूँगी लास्ट दो वाले, इधर वापिस वो ज्वाइन हो रहा है और बन जाएगा एक वाइट लाइट, इसमें बीच में सारे कलर आ जाएंगे, ओके। तो इससे क्या हुआ, देखो, इफ अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन with respect to first prism such that all colors of the spectrum pass through the second prism, then a beam of white light emerges from the other side of prism and of second, ठीक है। तो मैंने आपको ये करके बताया, तो इससे क्या न्यूटन को पता चला कि वाइट लाइट होती है ना, वो सनलाइट इसमें जो हमारी सनलाइट होती है वाइट लाइट, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से बनी होती है, ठीक है। नाउ अभी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो हम देखते हैं। नाउ इट अकर्स ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट इधर दिखाइए, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, उसमें क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू सन, सन जिस बाजू होगा ना उसके अपोजिट ही हमेशा होगा। द ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक लिटल प्रिज्म, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और वापस रिफ्रैक्ट होता है, जिसके कारण बनता है रेनबो। डिफरेंट कलर रीच ऑब्जर्वर्स आई ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो कैसे होता है मैं दिखाती, दिस इज सन, इधर से आए, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा, ओके, इधर ये हुआ और ये ऐसे, हम सॉरी थोड़ा इधर से बेंड होगा, डोंट कंसिडर दिस लाइन। और जो हमारी जो आई है उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे, ये रेड है और ये हमको वायलेट, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होता है काफ़ी बार एमसीक्यू आपके एग्जाम्पलर में ही है कि रेन ड्रॉपलेट में कौन सी चीज़ नहीं होती, तो उसमें ऑप्शन में था रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड नन ऑफ द अबव। नहीं होती, सॉरी होती है, वापस बोलती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अकर्स, रिफ्रैक्शन ऑप्शन ए, डिस्पर्शन ऑप्शन बी, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन 3, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव करना, क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्स, इट डिस्पर्सेस
वापिस अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट हुआ ना इधर, या वापिस सीधा डायरेक्ट चला गया, नहीं, वो रिफ्लेक्ट हुआ और वापिस रिफ्लेक्ट होके हमारे आई तक पहुंचा। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हमको जो स्टार की पोजीशन दिख रही है ना, दैट इज नॉट रियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में है ना काफ़ी ऐसे, फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, उसकी ये वेव लेंथ है, बीच में आ गया एक, बीच में आ गया एक कुछ भी चीज़ आ गई जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्शन के कारण बेंट होगा और हमको जो अपेरेंट उसके जो रियल साइज है ना वो नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टार है उसकी रियल पोजीशन है इधर आई है हमारी, ठीक है, तो इधर से आएगा ऐसे ऐसे बेंट होते 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 और हमको इधर दिखेगा, हमको इधर दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस रीड। The star appears slightly higher than its actual position, मतलब सॉरी, जो स्टार इधर होता है ना वो आई पे आता है और हमको ऐसे थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है, I just sorry reversed it. Then its actual position when viewed near the horizon due to the phenomenon of atmospheric it is refraction. रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हाँ मैं देखूंगी अगली बार से। द स्टार लाइट enters the Earth's atmosphere where its refractive index is increasing gradually and starlight is bent towards the normal. धीरे धीरे उसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण वो थोड़ा बेंड हो जाएगा और हमको ऐसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किसने नहीं सुना होगा? देयर इज नो वन जिसने ये नहीं सुना होगा। तो वो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं और हमारी एक पोयम क्यों बढ़ाई? इट्स सबको पसंद है, राइट, सब लोगों को आता है, पूरा नहीं तो दो कड़ी तो दो पंक्तियाँ तो आती होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, द अपर एंड पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। स्टार उधर ही नहीं खड़ा होता है, इट मूव्स। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एंड एटमोसफियर आर नॉट स्टेशनरी। वो है ना थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एटमोसफियर अर्थ की फिजिकल कंडीशन है ना वो स्टेशनरी नहीं है, इसलिए हमको दिखाई भी थोड़ा थोड़ा ऐसा वो उसमें भी हिलता रहता है। नाउ सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट दे आर पॉइंट साइज सोर्स, और जिसके कारण जब भी थोड़ा वो हिलता तो हमको वो ट्विंकल करता दिखाई देता है। तो क्वेश्चन वो बढ़ता है, वाई देर इज नॉट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लानट, लिटिल प्लानट, दे आर नॉट लिटिल। why planets do not twinkle? तो planets are much closer, वो हमारे से क्लोजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर अर्थ, तो ये नज़दीक है, लेकिन स्टार सी हाउ फार इट इज सो फार। इधर ठीक है, इधर तो नज़दीक दिखाई देता है, इधर ये ले लो, इट इज सो फार, दिखने में भी देखो। तो अ प्लानट कैन देयरफॉर बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर। इसमें क्या होता है कि टोटल वेरिएशन आता है, अमाउंट ऑफ लाइट ना दो टाइप की आती है, एक होती है पॉइंट साइज और एक आती है एक वाली बड़ी होती है। ठीक है, तो वो दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे ना तो 0 आएगा और वो दोनों की जो इफेक्ट है ना वो न्यूलीफाइड हो जाएगी। न्यूलीफाइड मतलब इट विल कट ईच अदर। ठीक है, 0 हो जाएगी न्यूलीफाइड मतलब। अभी एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। हैव यू एवर हर्ड कि आप जो सनराइज है ना वो 2 मिनट पहले देखते हो और सनसेट है ना वो 2 मिनट बाद में देखते हो? ऐसा कभी सोचा है? नहीं सोचा? देखो कैसे होता है। ये हमारा सन है, हम इधर खड़े हैं, ठीक है, सन इज कमिंग, अरे सॉरी दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। उतना तो बड़ा है लेकिन दूर से देख रहे हैं ना इसलिए छोटा है हमने लिए। तो रिफ्रैक्शन के कारण वो ऐसे हमारे पास आ रहा है। देयर आर मैनी लेयर्स, लेयर्स दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, चलो। देयर आर मैनी लेयर्स राइट इन आवर एटमॉस्फेयर, 5 लेयर्स। ठीक है,
तो जिसके कारण वो बेंड हो जाता है। और हमको कैसे दिखता है वो ऐसे, इसलिए हमको 2 मिनट वो जल्दी दिखता है। ठीक है, तो डीले सनसेट में क्या होता है, इट इज़ द सेम फिनोमिना। इधर होता है सन, उधर होता है, इधर हमारा अगेन बहुत सारे एटमॉस्फेरिक है, 5 है। इधर हम खड़े, ये हमारा अर्थ है, और इधर से आ रहे हैं। देन वी सी, ऐसे ऊपर देखते हैं, जैसे ये अभी सनसेट हुआ, ये अभी सनसेट हुआ, लेकिन हमें तो अभी इधर दिख रहा है। जब वो 2 मिनट के बाद इधर पहुंचेगा तभी वो रियल इधर आएगा हमको, मतलब इट्स लाइक अ लूप होल। 2 मिनट के बाद हमको दिखेगा कि अभी वो किधर है। समझ आया? The apparent flattening of the sun's disk and sunrise and sunset is also due to the phenomenon of atmospheric refraction. Atmospheric refraction के कारण ही होता है। Scattering of light. Next topic, Tyndall effect. तो देखी ही होगी, मैंने इधर देखो फोटोज भी, इट इज रिलेटेड टू दिस। अभी आपको एक पूरा डार्क रूम है, डार्क रूम को डार्क ही दिखाते हैं, डार्क रूम है, चलो ठीक है, उसमें से आ रही है बीम ऑफ लाइट। तो आपने कभी कभी देखा होगा तो ऐसे डॉट 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 दिखते हैं, तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। लास्ट ईयर हमने देखा था, तो इस बार हम इसमें सिर्फ एग्जांपल है। और ऐसा क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो 2 एग्जांपल है कि जब फाइन बीम ऑफ लाइट है ना हमारे रूम में एंटर करती है तभी हमको दिखता है। और दूसरा कब होता है, जब कैनपी में when sunlight passes through a canopy of a dense forest, क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक आज है, dense forest, tiny water. Next topic is why why our sky seems blue, why our sky seems blue। ठीक है, स्काई ब्लू दिखता है क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ है ना वो छोटी होती है। देखो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हमारा सन है ना हमको रेड दिखता है और दोपहर को वाइट दिखता है। उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ, वो है नहीं लेकिन बता देती हूँ। सन जब इधर आता है तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू जाता है, तो जिसमें जो रेड लाइट होती है ना वो उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो बीच में है ना सारे जो भी पार्टिकल्स है ना वो उधर रह जाते हैं, तो जिसके कारण रेड कलर की वेवलेंथ हमारे आँख में सबसे पहले पहुंच जाती है। जबकि बाकी सारे कलर्स, फॉर एग्जांपल ब्लू, तो उसकी वेवलेंथ छोटी होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, वापस उधर रिफ्रैक्ट होती है, वापस रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे ऐसे करते वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। एंड देयरफॉर आवर स्काई लुक्स ब्लू। ठीक है, अंडरस्टूड? ब्लू कलर हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ एंड देयरफॉर it deviates the most, or for example it is coming like this। इसमें नहीं दिख रहा, इधर गया फिर इधर और एक होगा, इधर गया इधर गया, वो सब में होगा। ठीक है, और दोपहर के समय क्या होता है, हम जो सन देखते हैं वो सबसे ऊपर क्या होता है, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, जिसके कारण जो उसकी लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती है, and therefore it looks white, original color। हमारे क्लाउड्स के तो क्यों वाइट कलर, वो क्यों ब्लू नहीं है? देखो क्लाउड्स होता है ना वो जो हमारे एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट्स में होते हैं। जो स्कैटर करने वाली चीज़ है ना उसकी साइज इज मच बिगर देन द वेवलेंथ, जिसके कारण वो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए। ठीक है, now thank you, the chapter is over here। don't forget to like, share and subscribe। अगर कुछ भी डाउट हो then you can comment me below, I'll solve it। होगा तो मैं अगर कोई डाउट का स्पेशल वीडियो भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।